Assalamu alaikum. These are our topics, and firstly, we will discuss about the structure of signs. American Sign Language is a natural language that uses visual elements, not auditory ones. तो जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है बेसिकली इट इज़ अ विजुअल लैंग्वेज, यानी इसमें हम किसी को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए स्पेशल जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो यूज़ करते हैं. इट इज़ डिज़ाइन फॉर आइज़. बेसिकली हमारी आइज़ के लिए डिज़ाइन की गई, यानी हम इसे देख सकते हैं, वी कांट हियर इट. जैसे स्पोकन इंग्लिश होती है तो वो हम किसी को अपनी बात समझाने के लिए स्पोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, बट ये जो है इसका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अपनी वोकेबलरी है. और ये अमेरिका और कनाडा में ज़्यादातर यूज़ की जाती है. वहाँ पे जो डीफ हैं या जो लोग सही तरीके से बोल नहीं सकते, अपनी बात को समझा नहीं सकते. और इसके बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं जो हमारे आर्टिकुलेटर्स यानी टंग वगैरह जो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, उनसे मिलकर बने हैं. और वो 4 पैरामीटर शेप, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड मूवमेंट हैं. और इन सब पैरामीटर्स का जब कम्बिनेशन बनता है तो उनसे जो है वो डिफरेंट साइंस बनते हैं जिससे मीनिंग कन्वे होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स which is shape and orientation. So in ASL, shape refers to the configuration of the hand and fingers used to form a specific sign. मिडल में we can see a lady और वो जो है अपनी पाम को ऐसे शो कर रही हैं, which means that it is a visual representation of saying thank you. And जो ये thank you कह रही हैं, it is basically in a sign, in a visual representation. He is not saying thank you, he is giving a gesture of thank you, so everyone can understand that what he want to say. Even the direction or position of the hand and palm in relation to the body, the signing, the space, that's called orientation. And we can see that arrow, and that arrow is lining toward the hand palm. That shows that this point is the orientation. Basically, the position, the direction of the palm, which is showing through this arrow, this is the orientation. Third one parameter is location, that is particular place where hands are positioned in the relation to the head and upper body of the signer. So signer is basically the person who is showing the signs. Like you can see the lady in the middle, she is showing some signs, so she is the signer. When we do the visual representation of thank you, it begins from our mouth and is completed at our chest level. We can see the lady that is showing the sign of thank you. It firstly lift her hand up and then she put it down. So the red arrow and the line is showing the location that complete the parameter of location. And in the right side we can see that these parameters are different in different conditions. Fourth and the last one parameter is movement, which refers to the way the hands, arms and body move to convey the meaning. So this basically shows that movement from starting of the hand and then where it ends. And we can see that fingers are towards the receiver and the total movement is out and downward. So this whole process of circulation is called movement, and this is the fourth parameter. It the movement completes, this example basically completes the parameter of movement. Like we sometimes misunderstood some words in spoken language. Sometimes we can't hear them correctly, or sometimes the person who is saying something can't say it clearly because of the tongue slip. That's the same thing in this process, that we have to face some mistakes in visual language also. The term prime is basically the sets of features that form contrasting elements with the help of articulatory parameters of ASL. We have discussed about the shape and orientation. That examples will use here, that flat hand is used for shape and palm up is used for orientation. And these are the primes. A complete feature analysis of every sign be created, allowing for detailed a detailed understanding of ASL structure and meaning. We will move toward the further topic, the facial expressions and finger spelling. लाइक इसमें जो विजुअल मीडियम होता है वो हमारे पास होती है मोशन पिक्चर्स, यानी उन पिक्चर्स के ज़रिए डिफरेंट मीनिंग को कन्वे किया जाता है. उनमें भी हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं. लाइक वी कैन सी दिस लेडी एंड शी इज़ मेकिंग अ साइन, एंड दैट साइन इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग एंड वी फाइंड इट डिलीशियस. लाइक कुछ चीज़ खाएं वो आपको अच्छी लगे तो हम बेसिकली ये साइन शो करते हैं, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ डिलीशियस, एंड एवरीबडी नोज दैट कि जो चीज़ थी वो अच्छी थी. और इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में बच्चे या हम भी कुछ अल्फ़ाबेट्स को शो करने के लिए जो साइंस साइड लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं इनको यूज़ करते हैं और इनके ज़रिए अपने मीनिंग्स को कन्वे करते हैं. वाइल इन रिप्रेजेंटिंग साइंस वी राइट आवर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गिव द मीनिंग. लाइक अगर आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, विच मीन्स कि जो क्यू है वो क्वेश्चनिंग को शो कर रहा है कि कैन आई बोरो द बुक, एंड जो एम है वो सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ साइंस, के जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज को की वोकेबलरी को सही तरीके से नहीं समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझते, वो समटाइम्स उसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो साइंस होते हैं उनको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, यानी उनको उनकी समझ समटाइम्स
नहीं लगती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और सही तरीके से उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। लाइक वी कैन सी कि यहाँ पर ये पाम्स जो हमें नज़र आ रही हैं उनमें फिंगर्स जो है वो इंटरलॉक्ड हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो ये किसी मिक्सिंग पॉट की तरफ हो रहा है इशारा, यहाँ जो एक फ्लैग है उसकी स्ट्रिप्स को पकड़ा हुआ है और यहाँ ये एक दूसरे के साथ सिर्फ जोड़ के कोई बात कहने की कोशिश की जा रही है। बट बेसिकली दिस साइन इज़ यूज फॉर अमेरिका। तो देखने में, इसको समझने में, क्योंकि हम ASL से उस तरीके से जो है वो अवेयर नहीं हैं, तो हमने इसके मीनिंग को सही तरीके से नहीं लिया, हम उसको समझ नहीं सके। सो इसके लिए इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और वही इसको समझ सकते हैं। इस पिक्चर में ये जो फिंगर्स इंटरलॉक्ड हैं, ये शेप है और पाम्स की जो ओरिएंटेशन है वो चेस्ट की तरफ है और ये लोकेशन है हैंड्स की जो हमें नज़र आ रही है। और ASL को बेसिकली इन्हीं पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग सही तरीके से सुन नहीं सकते या जो अपने मीनिंग को सही तरीके से किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, स्पोकन लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ताकि उनके लिए इन तमाम चीज़ों को ईजी बनाया जा सके और वो भी एज लाइक नॉर्मल पीपल कम्युनिकेट कर सकें।